کہ بچے کو گائیڈ لائن ہونی چاہیے پسماندہ علاقے پہ تو میٹرک کر کے دیتے تیرے واسطے مناسب فیلڈ کیڑا ہے بچے دی انٹرسٹ جی ایک کونسل دی سہولت کوئی نہیں ٹک ٹاک کے تھرو مطلب اپنا سارا انفارمیشن اور ڈیٹا سارا کچھ, اور جو ہماری ینگ نسل ہے نا اگر وہ بے شک اس کو یوز کرے لیکن پازیٹیو طریقے سے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو ایشو ہے نا کہ جنوبی پنجاب کا جڑا ساڈا خطہ ہے اندے کچھ لوگوں کے ظاہری گل ہے کہ وہ اتنے وسائل کہہ نہیں ہوندے اور غربت کی وجہ نہ کچھ دانستہ یا بلا واسطہ وہ بالا کو نہیں پڑھیں دے دسترس نہیں رکھیں دے. اچھا وال انہاں تک کوئی جو پلیٹ فارم کہہ نہیں مہیا انہاں کو کہ جڑے انہاں کو سمجھاون کاؤنسلنگ کرن جویں تساں آدے مخی آزاد ورنہ تعاون کرندے تے اندے کیتے کیا اقدام تھینا چاہیے یہ جا. دیکھو سر ان گال ہے کہ این وقت ویسے ایک اچھا ٹرینڈ یہ ہے کہ پرائیویٹ کالجز تقریباً 10-20 لڑکیاں کو ہر پرائیویٹ کالج اسکالرشپ تے پڑھیں دے جڑے میٹر کر کے آنا اون نال ایک سارا اچھا پروپورشن اتنے آوے نے وال یونیورسٹی حکومت دے اچھے اسکالرشپ ہیں سارا احساس اسکالرشپ ہے اور پنجاب گورنمنٹ اسکالرشپ پیف ہے پنجاب ایجوکیشنل بیناولر فنڈ اسکالرشپ ہے. ان دے علاوہ یونیورسٹی اسکالرشپ ہوندے کہ ساری یونیورسٹی ہر ڈپارٹمنٹ یعنی اپنا جڑا لڑکا فرسٹ آندے سیکنڈ آندے تھرڈ آندے انہاں تریہا دے فیس ریلیٹیولی پروپورشن نال معاف ہے ان دی ٹیوشن فیس معاف ہے جی. ان دے بعد بچے اگر فرض کرو ٹیلنٹ ہے اور وہ کئی کیٹیگری چ نہیں آندا والا سم اپنے جڑے فنڈ مختص کیتا ان دے وچ سپانسر کرنے سپورٹ کرنے تے باقی میرا خیال ہے کہ سکولوں دی فیس آلریڈی گھٹ ہے اتنا کاؤنسلنگ دی بہرحال ضرورت ہے. جی تو اشارہ کیتے کہ بچے کو گائیڈ لائن ہونی چاہیے پسماندہ علاقے پہ تو ہن میٹرک کر کے دیتے تیرے واسطے مناسب فیلڈ کیڑا ہے بچے دی انٹرسٹ جی ایک کاؤنسلنگ دی سہولت کوئی نہیں. یہ میرے خیال ہائی سکولز اور کالج لیول تے ایک یہ سہولت ہونی چاہیے. لیکن یہ جڑا مضافاتی علاقے ہیں نا اتنا ہی گال دی بہت ضرورت ہے جی سارے جنوبی پنجاب یہ کاؤنسلنگ دی اپرچونٹیز گھٹ ہے تے اون دے کتے ظاہری گل ہے کہ کوئی جویں فیڈ بیک پیرنٹس بھی دیندے ہوندے نال اون دے علاوہ اتھن دے جڑے لوگ ہیں جڑی این جی اوز ہیں سماجی تنظیماں ہیں میرا خیال انہاں دا فرض بنتے وہ بھی رول پورے کریں. میں سمجھدا جڑے ریٹائر حضرات ہیں اسپیشلی جڑے محکمہ تعلیم ایجوکیشنسٹ ہیں وہ چ ون کے اگر اپنے ہر سکول ہر کالج ماہانہ وار اگر ایک اپنا موٹیویشن سپیچ دے دیں یا ایک لیکچر دے دیں تو انہوں کافی سارے بچوں کی تربیت تھی ویندی اور کافی سارے بچے نے انہوں نے مستقبل بن ویندے اویئرنیس مل ویندی جی. ایک بچہ سارے ڈپارٹمنٹ تو پڑھ کے گئے انہوں نے ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کی نسٹ تو ہوں نسٹ پڑھیندا پہ انہوں میرے پچھلے ہفتے فون آیا وہ آدھے جی میں ایک بار واسطے تھوڑا ڈپارٹمنٹ آنا چاہنا جو میرے کو کوئی ایسے جڑی انفارمیشن جڑی میں تھوڑے بچوں نے شیئر کرے سا انہوں نے کئی بچوں کی جڑا نا لائف چینج تھی اور ان کی وجہ وجہ سے کہ سارے کو ایک بندہ آیا ایک ایجوکیشنسٹ آئی انہیں اپنی لائف کے ایکسپیرینس شیئر کیتے اور ان دے ایکسپیرینس دی وجہ تو میری لائف چینج تھی ماشاءاللہ. تو میں سمجھتا کہ وہ موٹیویشنل جو سپیکر ہوندے ہیں جویں ایگزیکٹلی وہ آدمی یہ صدقہ جاری ہے اور ایک کارپوریٹ اور جو سوشل رسپانسبلٹی ہے کہ لوگوں کو پے بیک کروں ان سے اساں اپنے الومنائی کو لینے ہیں. ویسے سارے ایک ہی ٹرینڈ ہے ہر سال اپنا ڈنر کرنے وہ ساری الومنائی آندی وہ آ کے اپنے سارے اسٹوڈنٹس کو ملتی ہے انہوں کو موٹیویٹ کریں دی بھی تساں یہ کرو تاکہ تمہاری سکل پیدا تھی کمیونیکیشن سکل سافٹ سکل کانفیڈینس لیڈرشپ کوالٹی ٹیم ورک اس چیزاں جڑا نا اس کو لوگوں کو سیکھنے نال ملتے ہیں کتاباں چ نہیں ملتے ہیں. یہ تربیت دا عمل ہے ایگزیکٹلی. ڈاکٹر صاحب اب جو جنریشن ہے اس کا سوشل میڈیا کی طرف بڑا رجحان ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں لمحہ فکریہ ہے اس کا کوئی آفٹر شاکس بہت عجیب نظر آ رہے ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ڈپینڈ کرتا ہے آپ سوشل میڈیا کو یوز کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے نا. اب آج کل آپ دیکھیں ٹرینڈ چلا ہوا ٹک ٹاکرز کا بہت زیادہ ٹھیک ہے لیکن اس میں بھی اب جیسے اگر انٹرنیشنل کمپنیز کو آپ دیکھیں نا وہ اپنی بہت پروموٹ کر رہی ہیں ٹک ٹاک کے تھرو مطلب اپنا سارا انفارمیشن اور ڈیٹا سارا کچھ. اور جو ہماری ینگ نسل ہے نا اگر وہ بے شک اس کو یوز کرے لیکن پازیٹیو طریقے سے. اب ہماری تو جس طرح کی تربیت ہے اللہ کا شکر ہمارے گھر کا ماحول بہت وہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. ہاں جی وہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے. آپ کی تربیت آپ کے والدین آپ کو کس مطلب آپ کی نظر رکھتے ہیں اور اس طرح میں تو کیا بتائے جاتے ہیں بالکل. تو میں اس میں ایٹ لیسٹ اپنے لیے اور ہم اپنی فیملی کے لیے میں یہ کہوں گی کہ میرے والد اور والدہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے ماشاءاللہ اس میں کہ بالکل وہ میں کہتی ہوں ان کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہمیں صحیح اور غلط میں تمیز سکھائی ہے اور یہ بہت ضروری ہے. آج کل میں نے 2018 میں ہاؤس جاب ختم کر کے بختاور امین میں ایز اے ڈیمونسٹریٹر بھی کام کیا تھا نا. تو اسٹوڈنٹس نے کافی بی ڈی ایس کے مطلب میں نے بی ڈی ایس کی کلاس لی تھی تو اس میں بھی جیسے ابھی بابا نے بتایا کہ
फीमेल्स की रेशो ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू मेल्स, और उसमें भी मैं यही देखती थी। तो मेरी कोशिश होती थी, जैसे मतलब मेरे अम्मी अबू ने सिखाया कि पहले आप कोशिश करो कि आप दीन को रखो, ठीक है। तो पहले छोटी सी मैं क्लिप दिखा देती थी कि अच्छा सब बच्चों को कि चलो पहले दीन आता है, फिर आप अगर आप अपने दीन को इनकॉर्पोरेट करते हो ना अपनी उसमें प्रैक्टिस में, तो उसका बहुत बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। बरकत पैदा हो जाती है बिल्कुल। और आपको पता है सऊदिया में जब हम रहे हैं, हमने ये चीज़ वहाँ बहुत देखी है। अच्छा, क्या हॉस्पिटल्स में हम जब जाते हैं तिब्बे नबी पड़ी होती थी अक्सर हर डॉक्टर के पास। अच्छा। और तक हमें अम्मी अबू ने एक दुआ सिखाई थी, मतलब जब आप बीमार को देखते हो ना तो उसकी एक दुआ है। तो मेरी कोशिश होती है, जैसे अब मैं तो उस फील्ड में हूँ ना कि कोई भी इस तरह का पेशेंट आए तो अब वो फौरन दुआ, अब वो हमें याद हो गई है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अगर कोई मेरे साथ हो तो मैं उसको भी बताऊँ कि ये दुआ पढ़ा करो कि आपको मतलब शिफा मिले। ये कार खैर की बातें हैं जी, और इस पर यकीनन उसका असर होता है। अच्छा, जरा लाइटर मूड पूछते हैं थोड़े कलें कि डॉक्टर साहब का घर कैसा माहौल है और क्या इन्होंने उत्थां एक्टिविटीज़ हैं? हाँ, इन्होंने जो कि जॉब का एतकाद है बड़ी डिमांडिंग होती है। बाज़ औक़ात पेशेंट्स कोई गुस्से वाले भी आने, जारी बात, अच्छे पेशेंट हर मिजाज दा वो बेचारे अपनी परेशानी तो होने। इन्होंने ये समझाया कि अगर तुम टेंशन का शिकार हो, मरीज तुहाडे कोल आंदे, वो ई तवक्को ना लांदे कि मेरे कोई डॉक्टर ठीक करे। ठीक है, और शिफा तो अल्लाह वालू है, लेकिन जरिया या सबब डॉक्टर है, दवाई है। इन्होंने मैं आखा कि अगर कोई तुहाडे डॉक्टर ऐसा भी पेशेंट आ वने जेड़ा कि बदतमीजी करे तो कोई इग्नोर करो, क्योंकि वो जो क्राइसिस तो गुजरदा पे वो तो शायद उसका अंदाजा कोई नहीं। और एक वाकई ना थी भी चुके कि एक पेशेंट आया, उन्होंने बड़ी मतलब कि इन्होंने गुस्से का इजहार किया और कागज ने तो सुट दिते, लेकिन वो बेचारा अपनी परेशानी और शुक्र है अल्लाह का इन्होंने कोई उधर रिएक्शन नहीं किया नेगेटिव, क्योंकि आफ्टर कुछ टाइम ही डाइड, वो बेचारे इंतकाल थी गया। तो मैं वो शुक्र अदा करना अल्लाह का। इन्हें मेरे को दसा कि बाबा जी एवं आज सारे एपीसोड थे तो शुक्र मैं कुछ नहीं किया, वो मतलब मिनटा बाद बेचारे डेथ थी गई। वो ज़ाहिर है एक बंदा परेशान है, मरीज है, मैं ई गल तो मैं आदा पिया कि मैं दू प्रोफैशन तो बड़ा मुतासर हाँ। एक आर्मी का प्रोफैशन जो सारे सरहदां की हिफाजत करें, मैं जी मैं दिल तो उन्होंने इज्जत करें ना, दुआ करें ना उन्होंने वास्ते, उन्होंने फैमिली वास्ते। और दूसरे डॉक्टर हैं जेड़े के मतलब है कि मसीहा का किरदार अदा करें। और मैंने समझता कि अल्लाह ने फरमाया कि जिसने एक जान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। देखो ये तो बड़ा अजर क्या चीज़ है, इतना अल्लाह ने स्टेटस देते डॉक्टर कि वो इतना रिवार्ड दे देते। तो एक यही चीज़ तो देख के मैं ख्वाहिश पैदा की थी कि अल्लाह ये बच्चे को डॉक्टर पढ़ा। चलो सारे वजन तो बाद एक सदका जारिया एक नेकी दा ज़रिया सारे वास्ते चलता रहा। यकीनन इंदे जिन्हां दी वालदा दा भी किरदार हो सी, उन्होंने भी अपने विसात दे मुताबिक बहुत तावन किया। उन्होंने बड़ा तावन किया। मैं तो चूंकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी टाइम गुजरे ना, बाकी जेडे बेटियां दी तरबियत है या बच्चों वालदा दी जिम्मे होंदी, वो माशाल्लाह कोशिश की उन्होंने, मेरी मिसेज ने, इन्हां को हर वो चीज़ डेढ़ में तरबियत जड़े इन्होंने हिस्से इन्होंने वास्ते जरूरी है जो अल्लाह ने उन्होंने को शौक दी, जो उन्होंने वो भी माशाल्लाह कुरान मजीद पढ़ावन लगी रहे हैं। अच्छा, घर कुरान की क्लास नहीं दी, हाउस वाइफ हैं जी, हाउस वाइफ हैं। लेकिन उत्था भी उन्होंने अरबी के कोर्सेज किए 9 साल के, वाल इतना आके 1 साल का कोर्स किए, पढ़ाने सिलसिला जारी रहा होंगे। लेकिन साढ़े हफ्तावार एक क्लास होंगी यूनिवर्सिटी के खवातीन आने, वो कुरान भी पढ़ते हैं ते तजवीद तर्जुमा तस्वीर पढ़ते हैं। बाकी बाल ही तोड़े माशाल्लाह ये पासे रुझान रखें दें जी अल्हम्दुलिल्लाह। असा कोशिश की थी कि ना को एज ए मुस्लिम बुनियादी इन्फॉर्मेशन जेडे होनी चाहिए मुकम्मल होनी चाहिए। इन्हों को अब क्या अच्छाई है क्या बुराई है, नेकी और बदी का फ़र्क क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह ना सब अपनी तरफ शौरी कोशिश करके इन्हों को डेढ़ थे। बाकी अल्लाह मुहाफ़िज़ है इंशाअल्लाह, और असा काफ़ी मुतमईन है अपने बच्चों तो, यानी वो अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर जी अल्हम्दुलिल्लाह उंदे ते तुसा इन्हां को पूरा अल्हम्दुलिल्लाह असा इन्हां को अपने तौर पे भी लगे रहे मैंने सही, और ताकि इन्हां को मोटिवेशन मिले सही, और खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने तौर पे करें ना, अल्लाह ताला कबूल और रिजल्ट नजर आंदा पे जी। मैडम साहब ने डॉक्टर साहब गाल कीती है ये, लेकिन मुआशरती अलमिया जेड़ा हुण दसेंदे पे ने कि डॉक्टर जेड़े हैं ओ फॉर द सेक ऑफ मनी आंदे पे ने पासे, ते इंदा थोड़ा निगाह क्या आदी है कि किवें तदारक थी सकदे? सर मैं तो खत्म कीता वन सकदे तमाम मसाइल दा हल दीन नाल जोड़वाना है सही। अगर तुसा दीन को समझ गए हो और को प्रैक्टिस करन लग पे हो तो तुहारे चीज़ तुहारे दिल च अल्लाह ताला ये चीज़ काट दे सी, पैसे दी मोहब्बत जड़ी है माशाअल्लाह। क्योंकि जेड़े लोग ये लस्ट है ना जी, लस्ट है, और ये उन्हां लोग जेड़े दुनिया दे थी गए। अल्लाह ने कुरान फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कि तुम्हें माल की मोहब्बत ने हलाक कर दिया यहाँ तक कि तुम कब्रों में पहुँच गए। ठीक है, वो मेरा ख्याल है जिन्हों ने अपने दीन के नाल आपको जोड़ के दिया, वो चाहे डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं कहीं भी प्रोफेशनल हैं, उन्होंने ज़िंदगी मुख्तलिफ थी गई है। मैं समझता कि दीन एक वाह ज़रिया है,
ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ तमाम ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। तुसा डॉक्टर साहब दसो अपने घर के हवाले नाल, डॉक्टर साहब तो फरमाए अपने बहन भाइयों नाल तुहाडा क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या रवैया है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मैंने वही आपको बताया ना, हमारे घर का माहौल बहुत ये, और हमारे आपस में बहन भाइयों का बहुत बहुत अच्छा ताल्लुक। अब तो ज़ाहिर है हर कोई अलग अलग जगह है, बस पीछे मैं ही हूँ अभी फ़िलहाल। तो अच्छा। एक मेरी सबसे छोटी बहन माशाल्लाह वो PhD कर रही है नस्ट से, और उसके बाद जो दूसरी बहन है वो माशाल्लाह अभी हाउस वाइफ है, तो उसका बेटा छोटा है तो इसलिए, और भाई माशाल्लाह कराची में IBA में पढ़ रहा है। तो अब तो सारे स्कैटर्ड हो गए हैं ना हम बहन भाई, लेकिन माशाल्लाह हमारा आपस में बचपन में जिस तरह वक्त गुजरा है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा माशाल्लाह, बेलोस रिश्ते होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उनका आगे अब प्लान क्या है? जो भाई वहाँ गए हुए हैं उनका क्या प्रोफेशनली क्या आगे करने का? उसको वैसे तो बचपन से ना बिजनेस का बहुत शौक है। अच्छा। मतलब उसको एक बहुत शौक है कि मैं, और माशाल्लाह उसकी फील्ड भी अब वही बाबा वाली ही है। तो और बस हमें बहुत लोग ईमानदार लोग भी चाहिए बिजनेस में आजकल। ये एक बहुत मतलब हमारे अम्मी अब्बू ने हमें शुरू से यही बात सिखाई है कि आप जो प्रोफेशन करते हो ना, सबसे पहले आपकी ईमानदारी आती है, ऑनेस्टी आती है। और जैसे मेरी बहन भाइयों की आपस में होती है दोस्ती ज़्यादा, तो मेरी अम्मी के साथ है सबसे ज़्यादा। मतलब मैं सबसे बड़ी हूँ शायद इसलिए, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी अम्मी है। तो हर बात छोटी छोटी, कोई भी टेंशन हो, कोई भी परेशानी हो, तो मैं अम्मी के साथ बहुत मेरी अटैचमेंट है। तो मतलब इस तरह का घर में बहुत फ्रेंडली माहौल। और अम्मा अब्बा ने हमें कभी आज तक मतलब यही कहा है कि जो भी बात है ना, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, आपने हमें शेयर करनी, और इससे हमें बहुत फायदा, हेजिटेशन खत्म हो जाती है। बिल्कुल। और मैं तो कहूंगी ये चीज कि आजकल की जनरेशन थोड़ी इस तरह की है कि पेरेंट्स को इतनी वो नहीं है। आपको पता है आजकल का थोड़ा, जो बच्चे अवॉइड करती हैं, वो हेजिटेट करती हैं बात करने से, घबराती हैं कि पेरेंट्स क्या कहेंगे। एग्जैक्टली। तो मैं ये कहूंगी कि आपके पेरेंट्स को जितना एक्सपीरियंस होता है ना, हम खुद भी गुजरे हुए हैं इसके थ्रू, हमने खुद भी गलतियां बहुत की हैं, कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो माँ बाप देखते हैं ना जिस नजरिए से, उस नजरिए से हम नहीं देख सकते बिल्कुल भी। और अगर हम उनकी बात मान लें तो ज्यादा बेहतर होता है। आफियत है, ऐसी है बिल्कुल। अच्छा, आपकी वालदा का आपकी तालीम के हवाले से कितना कंट्रीब्यूशन है? सारा माशाल्लाह माशाल्लाह, शुरू से वो मुझे याद है क्योंकि हम इंग्लैंड में पले बड़े थे, फिर इधर भी आके वो तो हमारे एक मुआशरे का अलमिया ही है कि इंग्लिश मीडियम में डाल दिया। और ये मैं ये कहूँगी ये चीज़, क्योंकि हमारा मुल्क बीइंग पाकिस्तानी, मैं कहूँगी हमें आनी चाहिए एक एक अपनी नहीं बिल्कुल आनी चाहिए। तो मेरी वालदा ने इसमें बहुत मतलब माशाल्लाह, जैसे मैंने FSC की, मेरी उर्दू काफ़ी कमज़ोर थी, मेरी इस्लामियात मतलब वो थी, तो मेरी अम्मा ने चारों बच्चों को माशाल्लाह खुद पढ़ाई, उर्दू सब्जेक्ट्स ये वाले हो, तो माशाल्लाह उन्होंने बहुत इस चीज़ में, मतलब हम जो हैं हम उनकी वजह से हैं। मतलब क्योंकि मेरे वालिद तो ज़ाहिर है वो तो जॉब के उसमें होते थे 24 घंटे, ऐसे ही वो भी आप ही की वजह से, आपके लिए ऐसे ही है, वो भी हमारे लिए। तो यकीनन इन बेलोस रिश्तों का आपस में ताउन होता है तो इंसान बुलंद मुकाम तक पहुंचता है। तो डॉक्टर साहब ये फरमाओ कि माशाल्लाह तुसा एक तालीम दे शोबे दा वाबस्ता है, अदब दे हवाले नाल कोई रगबत है, कहीं लिटरेरी पर्सनैलिटीज़ नाल राब्ता? सर मैं वैसे मतलब है कि अच्छा लगता है ज़ाहिर शेर व शायरी पढ़ना सुनना, लेकिन कुछ के सारा सब्जेक्ट तकाजा है कि इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, फार अवे फ्रॉम लिटरेचर, लेकिन पर्सनली मेरे को अल्लामा इकबाल साहब की शायरी बड़ी पसंद है। अच्छा। मैं उन्होंने को पढ़ता भी हाँ, कोशिश करना लिखा भी सही, याद भी करा, बाद शेर में उन्होंने क्लास कोट भी करे ना, क्योंकि इकबाल साहब को अल्लाह ने ऐसा एक मतलब फलसफा देते और पैगाम वाले मतलब है कि उन्होंने जो अशार हैं उन्हें हर हिकमत है, इको शायद उन्होंने हिकमत भी आखा है। सो उन्होंने एक शेर जिमें है कि ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। सुभान यानी कि ये इकबाल ही आख सकते, कोई भी आई हो जाए शायर नहीं आख सकता कि ये फलसफा शहादत है, एक मनने वाली गाल है। एग्जैक्टली इदी कंटिन्यूटी यानी हिंद नाल ही सियाक उस बागे जिन्होंने फरमाया ना, ज़बान से कह दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो माशाल्लाह इकबाल बड़े अजीम शायर, साडे कौमी शायर और अल्लाह पाकिस्तान बेशक बेशक अल्लाह ने दर्जात बुलंद आमीन। और उन्हां दे बारे में पढ़दा पिया हूं कि उन्हां दी वालदा ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਣੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨੇ, तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪਿਲਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕਬਾਲ को ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਣੇ और हत्ता के ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ नौकरी से छोड़ दी। मैं बहरहाल ये मालूमात मेरे को मिलन उनकी वजह तो साढ़े को ना जो माँ बाप रिस्क हलाल खवे सी अपनी औलाद को, तो वाल इकबाल वर्गे लोग पैदा थे। और बहुत सारे स्कॉलर ऐसे हैं जोड़े कि तुसा इन्ना कोई मतलब मैं कोई सैक्ट की गल नहीं कहना, लेकिन अगर तुसा डॉक्टर इसरार साहब की कोई भी तकरीर सुनो उनके इकबाल का जिक्र जरूर हो सी
ایمر سارے رضوی صاحب فوت تھے وہ بھی اچھی تقریر لیکن انہوں نے بھی اقبال انہوں کو یاد ہے جو حفظ کیتا اقبال شناسی بھی بڑا ایک فن ہے ترکی بڑی اقبال صاحب نے بڑی محبت کی تھی علامہ اقبال نال ترکی بڑی محبت کی تھی بالکل وہ انہوں کو اپنا شاعر سمجھتے ہیں ایران والے بڑی محبت کرانے علامہ اقبال کیونکہ فارسی چ بڑا کنٹریبیوشن ہے فارسی جی بہت بڑی شاعر ہے انہوں نے بہرحال میں ذاتی طور پر اقبال تو بڑا متاثر ہوں اور انہوں نے اکنامکس سے بھی کنٹریبیوشن ہے انہوں نے اقتصادیات کی بھی کتاب لکھی شروع اور میری خواہش ہے کہ میں کو پڑھا لیکن بہرحال وہ اقتصادیات سیاست معیشت معاشرت یعنی ہر شعبے میں دسترس ہے.